ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। शिवलिंग बनाया गया है, नंदी जी बनाए गए हैं। पेंटिंग्स तुसी देखो कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई ने। इन्हां नूं देख के लगता है कि ये किसी कैदी ने नहीं बल्कि एक मजे हुए आर्टिस्ट ने बनाई है। सबसे पहले जब मेरे पास में इनमेट आते हैं, इनमेट में अंडर ट्रायल हों या कन्विक्टेड हों, वो आते हैं, मैं उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ वो अपने बाय चॉइस आए हैं या फिर आपको भेजा गया है। रूटीन बाय रूटीन वो स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फिर उसके साथ में हम लोग उनको वाटर कलर्स के साथ में, ताकि उनको कलर जो सैचुरेशन सही हुआ है उसको नॉलेज रहे। और उसके बाद में वो लोग आके कैनवास पे एक्रेलिक पेंट, स्कल्पचर्स, 3D आर्ट और हाई रिलीफ स्कल्पचर्स, साथ में उनके पास में फर्नीचर का जो हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट वुड वाला इंटीरियर डेकोरेशन की आइटम्स, वो सब चीज़ें उनको एनालाइज करके बताया जाता है प्रॉपर कि वो कैसे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐड किया रिसाइकल न्यूज़पेपर। दिस प्रोडक्ट इज टोटली कंप्लीट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम रिसाइकल न्यूज़पेपर। इसमें जो रिसाइकल न्यूज़पेपर है उससे वेस्ट आउट ऑफ प्रोडक्ट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है बच्चों को सिखाया जाएगा स्कूल में। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਖੁੰਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੰਖਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ही है। हमारे जैसे लोग वहाँ पे हैं, अगर हमसे भी इन बिटवीन आई डोंट नो कभी भी किसी से भी कुछ भी गलती है गुनाह हो सकता है, तो ऐसा ही वहाँ पे रहता है। माहौल अच्छा है, सब लोग काइंड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे को लोग बोलते थे चौहान कहाँ ज्वाइन कर रहा है, आप स्कूल में जाने वाले लोग हो, इंस्टीट्यूशंस में जाने वाले लोग हो, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਡਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ गए। तो ये पेपर मैशे जो आप एलिफेंट देख पा रहे होंगे, ये पेपर मैशे का टोटली कंप्लीट काम है, राजस्थानी फोक आर्ट से रिलेटेड। उसके साथ में बच्चा बोला एक हनुमान जी बनाने आना, बोला ठीक है, तो वो हनुमान जी बना डाले। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾयल ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पेंटिंग्स आगे बिकदियाँ भी हैं, उस तो बाद वो पैसा कितने? क्योंकि मेरे साथ में जो है वो 110 रुपीज़ का पर डे का वेजेस है, और साथ में जो मेरे पास में जो मेरे अपने स्टूडियो की बात है, उनको डाइट जो है वो उनको नो चार्जेस है, तो वो इजीली उनको फ्री है। और 1 घंटे का रेस्ट भी है मैम 8 घंटे में मेरे स्टूडियो में, तो उनको वो हम लोग नॉर्मली देते ही देते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਸਕਲਪਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੰਦੀ ਜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ? सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सबसे पहले जब मेरे पास में इनमेट आते हैं, इनमेट में अंडर ट्रायल हों या कन्विक्टेड हों, वो आते हैं, मैं उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ वो अपने बाय चॉइस आए हैं या फिर आपको भेजा गया है। तो वो जब वो बाय चॉइस वाला फैक्टर आ जाता है, मेरे को क्लियर हो जाता है, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ, हम लोग स्टूडियो में जिस भी तरह के डिस्क्रिप्शन उनको दे सकते हैं, पेंटिंग से रिगार्डिंग, ड्राइंग से रिगार्डिंग या स्कल्पचर से रिगार्डिंग, तो वो लोग उसको फॉलोअप में रहते हैं। रूटीन में हम लोग स्केचिंग का उनका जो एक दौर है वो हमने शुरू किया हुआ है,
रूटीन बाय रूटीन वो स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। फिर उसके साथ में हम लोग उनको वाटर कलर्स के साथ में, ताकि उनको कलर जो सैचुरेशन सा ह्यू है वो उसको नॉलेज रहे। और उसके बाद में वो लोग आके कैनवस पे एक्रेलिक पेंट, स्कल्पचर्स, 3D आर्ट और हाई रिलीफ स्कल्पचर्स, साथ में उनके पास में फर्नीचर का जो हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट वुड वाला, इंटीरियर डेकोरेशन के आइटम्स, वो सब चीज़ें उनको एनालाइज करके बताया जाता है प्रॉपर कि वो कैसे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और, जिस तरह से जेल में आपने अच्छे से बताया कि वो फ्लक्चुएशंस रहती है मेंटली, उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, फैमिली से दूर हैं और अपनी जगह से दूर हैं। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐड किया रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर। दिस प्रोडक्ट इज़ टोटली कंप्लीट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर। इसमें जो रिसाइकल न्यूज़पेपर है उससे वेस्ट आउट ऑफ प्रोडक्ट वाला जो एक कॉन्सेप्ट है बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में। मैंने अपनी भी एक्सपीरियंस रहा है स्कूल में पढ़ाने के, तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने को, तो मैं उन लोगों को वो चीज़ें सिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद से सीखा है। और वो जब सीखते सीखते वो एक जो प्रोडक्ट आता है, आउटपुट आता है, जिस तरह से आप देख ही पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन में है। और ये आर्ट वर्क, हाँ जी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਪੀਓਪੀਸ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੀਪਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਖੁੰਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ खुंखार होएगा, ये एक माइंडसैट रहता है। लेकिन एक्चुअल च किद्दां दे अंदर लोग होंदे तो वो भी इंसान ही है। ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारे जैसे लोग वहाँ पे हैं, अगर हमसे भी इन बिटवीन आई डोंट नो कभी भी किसी से भी कुछ भी गलती या गुनाह हो सकता है, तो ऐसा ही वहाँ पे रहता है। माहौल अच्छा है, सब लोग काइंड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग गवार हैं। वहाँ पे कुछ लोग थोड़ा बहुत करते हैं तो हम उनको संभाल लेते हैं, समझा देते हैं। जैसे हमारे वेलफेयर ऑफिसर अभी थे दीप सर, या हमारे अंकित सर हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारे डॉक्टर पल्लिका अरोड़ा मैम एडिशनल आईजी प्रिजन है। तो बहुत अच्छे से ये लोग गाइड करते हैं। उस मेंटरशिप अच्छी है, लीडरशिप अच्छी है, उसके साथ में हम लोग बहुत ईजी हो जाता है। मटीरियल इज़ टोटली मतलब कि अवेलेबल है, जिस भी तरह से हम लोग बात करते हैं या मंगवाते हैं तो वो बहुत ईजीली मिल जाता है। तो उसके साथ साथ हम करते चलते हैं काम। ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਾਂ, I was served myself in the year 2017-18 चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी in the एनिमेशन डिपार्टमेंट और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। उससे पहले भी मैं इंस्टीट्यूशन प्राचीन कला केंद्र से मैंने अपनी टीचिंग शुरू की है। और छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, उनको पेंटिंग सिखाना, उनको बताना हाउ टू डील विद देम। तो मेरे को एक पेशेंस वाला फैक्टर तो एक शुरू से ही है। और उसके साथ में जेल जाना थोड़ा सा आपको पता ही है कि एक नया सा लगता है कि भी आप जेल जा रहे हो। थोड़ा सा अंदर था कि यार कैसा होगा। मेरे को लोग बोलते थे चौहान कहाँ ज्वाइन कर रहा है, आप स्कूल में जाने वाले लोग हो, इंस्टीट्यूशंस में जाने वाले लोग हो। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। बट जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर किया तो मेरे को खुद से लगा कि यार ठीक है, हाँ आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा ये है कि क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ वाइज आपके पास गैजेट नहीं होता है, आपका लैपटॉप इजीली नहीं आप यूज़ कर सकते, कैमराज आप लेके नहीं जा सकते सम टाइम। बट ये कि ऑन द परमिशन ऑन माई मैम वो हो जाता है, ईजी हो जाता है। दूसरा, ये जो स्कल्पचर्स या पेंटिंग्स हम उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं उनको रेफरेंसेस शेयर कर देता हूँ और उनको ओपनली बोल देता हूँ हु वांट टू डू। देन समबडी इज़ कमिंग अप साइड एंड देन वो बोलते हैं कि हाँ भाई हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देन हो जाता है ईजी। एज ग्रुप है कि ਜਿਹੜੇ इंटरेस्ट ज़्यादा रहते हैं कि असी बनाना है? ऐसा मैं पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है मेरे पास। 18 साल से ऊपर और ऑलमोस्ट 55 तक का एक पर्सन है। तो वो लोग बाय चॉइस ही कर रहे हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट मैं बोल ही सकता हूँ, सम टाइम आपको आज दिल है कि पेंट करना है, पेंटिंग करना है, स्कल्पचर करना है, बट आपको कल दिल नहीं होता। तो मैंने कभी प्रेशर नहीं डाला उनको, मैं कभी उनको फोर्स उस लेवल से नहीं किया, या मैं उनको कभी ये नहीं रखता हूँ कि भाई आई एम योर टीचर, आई एम योर मेंटर, आई एम जेल एम्प्लॉय। नो, इफ़ आई एम आर्टिस्ट देयर तो मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं उनको भी बोलता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो भी काम करें, आप वो टेढ़ी लाइन भी लगाएं तो मेरे लिए अप्रिशिएट करें, जस्ट बिकॉज वो माइंड सेट करके काम डाउन रह के वो काम करना चाहते हैं। और मेरे साथ में बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है। बाकी के जो लोग फैक्ट्री में भी हमारे पास में काम करते हैं फर्नीचर सेक्शन पे, वो भी बोलते हैं चौहान सर हमें आपके पास आना। तो दिस इज़ रियली बिग डील फॉर मी, और मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि भी वो लोग भी मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं मेरे हाँ जी।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਪਸ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਡਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ? मेरे पास में जो लेडी इनमेट्स हैं अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 5 ही हैं, बट जो पहले थे ऑलमोस्ट 10 थे, तो वो बहुत इंटरेस्टेड हैं। अभी कुछ काम आप जैसे स्क्रीन पे भी देख पा रहे थे, तो ये जिस तरह से कुछ लेडीज़ ने भी इनको जैसे ट्राइबल आर्ट है उसको बहुत इजीली कर लेते हैं और वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनको आर्ट करना है, उनको पेंटिंग करना है। वो एवरी टाइम मेरे को बोलते हैं सर आप प्लीज़ विज़िट कीजिए। सम टाइम ऐसा होता है मेरे पास में अपना स्टूडियो है मेन साइड पे, तो वो बार बार अप्रोच कर रहे होते हैं कि सर आप आते नहीं हो। वो चीज़ हम धीरे धीरे मैनेज भी कर लेते हैं। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਤ ਆਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा था, जैसे ही मैं वहाँ पे गया मैंने देखा कि सम फ्लक्चुएशन देयर उन लोगों के साथ, इनमेट्स के साथ, तो मेरे को लगा कि थोड़ा रिलीजियस रहेगा तो देवर कंफर्टेबली मतलब कि मेरे साथ ज्वाइन कर पाएंगे, सिंक हो पाएंगे। तो जैसे ही ये हुआ तो आप लोगों के सामने आउटपुट है। हाँ, ये वन ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ये न्यूज़पेपर है। जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਬ ਤੇ ਬੱਬੂ ਗੋਸ਼ਾ ਤੇ ਬਨਾਨਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। मैंगो ये सब अवेलेबल है। ये मेरा एक personal मैंगो experience है, one of the ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ये रिसाइकल न्यूज़पेपर है और इसमें वाइट सीमेंट एडेड है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ जी, और ਟੋਕਰੀ ਵੀ? नहीं, ये टोकरी बाहर से मार्केट से, और मेरे पास है एक पर्सन वो नीटिंग करते हैं। जी, तो ये एक एक्सपीरियंस ऐसा है, मैं स्कूल में था और मैंने स्टिल लाइफ के लिए फ्रूट्स को रखा, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो वहाँ से उठाया, बनाना उठाया, एप्पल उठाया, देन दे विल इट। तो मेरे को लगा यार ऐसा कुछ, सॉरी भाई स्टूडेंट्स के लिए, बट मेरे को लगा कि ये आर्टिकल खाया नहीं जाएगा और स्टिल लाइफ में यूज़ होगा, तो हम लोग इसको स्कूल्स में सर्कुलेट करने वाले हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मैम। तो अगर ये हो सके तो पॉसिबल है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਰਟਰੇਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ? एक हमारे जो इंडियन स्कल्पचर्स में हमने उनको बोला था कि एक थीम था कि इंडियन स्कल्पचर्स से ही करेंगे। अजंता, एलोरा, बाकी के जो हमारे कोणार्क टेम्पल्स हैं वहाँ से हम लोगों ने रेफरेंसेस उन लोगों के साथ शेयर किए और उन लोगों ने स्कल्पचर्स के आउटपुट्स दिए। तो ये हम लोगों ने जो मैथोलॉजिकल था, रिलीजियस था, स्पिरिचुअल था, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने स्कल्पचर ऐड कर दिया। तो अब ये आउटपुट आपके सामने है, तो आई विश आप लोग सभी इंजॉय कर पा रहे हो। तो ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੀਪਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ सेड के वी गाइज आर विजुअल आर्टिस्ट। हम लोगों को अगर अपने एक्सप्रेशंस को, फील को बताना है या जाहिर करना है, तो हम लोग अपने शब्दों से ना कह के हम लोग अपने कला से, अपने पेंटिंग कैनवस से, स्कल्पचर्स से बात करें। तो वो आपने ही बोला, जैसे भी वो अच्छे से आई विश। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वन ऑफ स्टूडेंट, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो बच्चा है मेरे पास में। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे होंगे कुछ गर्ल्स हैं, कुछ कपल्स हैं, कुछ तो उसका बच्चे का है कुछ लव मैटर, लव मार्शल अफेयर्स का कुछ केस है उसका, और वो वहीं से करेक्शन के साथ में वो अंदर भी है। तो वो सम टाइम वो करता है तो मैं उसको कभी रोकता नहीं हूँ। मेरी तरफ से वो फ्रीडम है उसको कि भाई तुम बना लो, क्योंकि उसका जो कैनवस है कभी भी ऐसा नहीं है कि अंडर एस्टिमेट किया जाए, उसको हाईली अप्रिशिएटेड ही रहता है। और जी, वो सामने लगे हैं वो जो लेडी वाले काम है जी, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? अब ये जो बच्चा है हमारे पास, ये अभी तो मदर और इसने चाइल्ड बना दिया, गर्ल चाइल्ड है, बट ये बहुत ज़्यादा ये कपल बनाने में या गर्ल्स बनाने में एक्सपर्ट है। मतलब कि इसको लगता है कि आपको पता है वो एक फीलिंग्स रहती है उसकी, जो भी ये जैसे नीचे ही बनाया हुआ उसने कपल बैठा है, तो ये कई बार ऐसा रहता है कि सर मेरे को यही करना है, तो मैं कभी बोलता नहीं, तो मैं बोलता हूँ ठीक है आप ये कर लीजिए, अदरवाइज़ एक और आर्टिकल ऐड कर लीजिएगा इसके साथ जो आप अलग बनाओगे। तो ये है उसका फीलिंग्स है उसके साथ जुड़ी हुई है, तो वो निकाल दो। प्यारे बनाए अलग अलग डिज़ाइन। जी मैम, ये लैम्प्स भी हमारा फैक्ट्री का ही प्रोडक्ट है, जेल का प्रोडक्ट है। तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 70 to 80 जो वहाँ पे इनमेट्स हैं अंडर ट्रायल और जो कन्विक्टेड हैं,
तो वो भी करते हैं। अभी रिसेंटली ये आर्टिकल ऐड की हुआ है? ये गार्डन डेकोरेशन के लिए, डक फैमिली जैसे गार्डन डेकोरेशन, अभी इसके साथ में और चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी। चीज़ का बने हैं। ये कोकोनट फाइबर है, पेपर मैशे है और इसके साथ में वाइट सीमेंट है। पानी नाल पिघले, ये इसके साथ एक प्रोसेस अभी होना है, तो वो ये ऑपॉक्सी वाला कोट करके इसको फिर ये वाटर प्रूफ। कलर भी करोगे। जी जी। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਹੈਂਗਿੰਗਸ ਹੈ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੀਮੇਲਸ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋल्व ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿन महिलावां किस तरीके ਨਾਲ आती है यहाँ क्राइम? पे एक जेंडर इक्वालिटी वाला मेरे को पता है वो मुद्दा उठ जाता है, बट ऐसा है कि देखिए कन्विक्शन होना या सॉरी क्राइम होना ये कोई किसी का भी जेंडर के साथ रिलेटेड नहीं होता। किसी से भी कभी भी कुछ भी छोटा मोटा गुनाह हो जाता है, छोटा छोटा गुनाह अगर उसको आदत पड़ जाए तो वो बड़ा हो जाता है। तो हम लोगों को सबको ही एक थोड़ा सा पेशेंस लिया, उसको धैर्य रखना चाहिए कि वो किस तरह से अपने उस गुस्से को, एग्रेशन को काम डाउन करके उसे क्राइम को होने से रोक ले। अगर हम लोग कभी भी गुस्से में आए, मैं अपने लिए भी करता हूँ समटाइम, मेरे को भी अगर मैं इरिटेट हो रहा होता हूँ या कुछ, मैं वहाँ से उस एक स्पेस से हट जाता हूँ, उस एक जगह से हट जाता हूँ, उस एक इंसान से बात करना बंद कर देता हूँ। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो आई विश के वो सब लोग जो क्राइम कर रहे हैं या जिनकी वजह से जैसे मार धाड़ का केस लगाते हैं, तो अगर वो चीज़ हट जाए, वो वहाँ से उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, उसे एक क्या बोले, उस एक एक्ट को अगर रोकना है तो हमको वहाँ से हटना पड़ेगा उस एक स्पेस से। तो वो अगर कर सकें, क्षमता रखें, तो वो इजी हो जाएगा कि हम लोग जाएँ ना। और दूसरा, लेडी जो आप पूछ रहे हैं उनकी मानसिकताएं कैसी हैं, देखिए लेडी जो है ना अपने आप में कंप्लीट है, बट जब वो गुस्से में रहते हैं तो फिर वो किसी के नहीं है। तो वो चीज़ अगर वो खुद से ही संभाल पाएँ अपने आप को, देखिए अगर कोई लेडी गुस्से में है उसको इजीली, मेरे को नहीं लगता कोई भी उनको टैकल या उनको समझा सकता है, बट जिसके वो क्लोज़ हैं वो ही उनको मैं बता सकता है, फैमिली मेम्बर हो या उनके हस्बैंड हो या उनके वटेवर जो भी रिलेशन में हो, तो वो अगर काम डाउन कर सकते हैं या फिर वो खुद। तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अगर कभी ऐसा कुछ होता है, गुस्सा नाराज़गी होती है, कभी भी फिजिकल एक्शन में ना आए, ਵਰਬਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ। मैं बड़ा सम टाइम मैं देखता हूँ छोटे छोटे से बच्चे, बड़े क्यूट से बच्चे, और वो जाते हैं क्रैच में, हमारे अंदर जेल में क्रैच भी है, बच्चे पढ़ते हैं। और आई वॉज थिंकिंग कि इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ मैं उनसे, और कई बार आंसू आँखों में पानी भी आ जाता है कि यार ये बच्चे की क्या गलती है। अगर एक मदर या फादर की गलती है और वो वहाँ पे जेल में इनमेट है, जैसे भी है, बच्चों का कोई कसूर नहीं होना चाहिए, बट उनके बिहाफ पे वो बच्चे उनके साथ हैं। तो मैं हर एक पर्सन से ये बात बोलना चाहूँगा, इन द जेल एम्प्लॉय अगर मैं बात करूँ, कि कोई भी ऐसी गुस्से नाराज़गी वाली कोई बात है तो उसको फिजिकल वायलेंस पे ना ही लेके आएँ तो बेटर है। कुछ भी हो सकता है उसमें, मेरे को नहीं पता किसकी क्या स्टोरी रहेगी। दूसरा, बहुत सारे क्राइम करते हैं लोग, किसी भी तरह के क्राइम करते हैं, 420 का है, बाकी का है, तो वो लोग चीज़ें पहले ही देख के रखें। हम लोग एज एन एम्प्लॉय होकर कई चीज़ें हमारे मन में होता है। आजकल हमारे साथ होता है, मैं जेल एम्प्लॉय हूँ पिछले 1 ईयर से, तो अगर कोई रोड पे जाते हुए बोल भी देता ना कि तुम धीरे चलाओ बाइक, तो हम धीरे करके उनको स्टॉप कर लेते हैं। ऐसा रहता है जस्ट बिकॉज हमें पता है किसी के एक्शन पे क्या रिएक्शन होगा और क्या क्राइम होगा, और वो चीज़ें मैनेज करना चाहिए। और एवरीवन नीड टू लर्न लिटिल बिट ऑफ लॉ, इंडियन लॉ थोड़ा सा पढ़ना चाहिए सबको। बनवाया है ये मॉडर्न स्कल्पचर है और इसका जो टाइटल भी है मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन है, डीप थिंकर है राइट नाउ। अभी मुझसे बहुत लोगों ने बात की, लेकिन आप आए हैं तो आपने बात की है। ये डार्क कलर में है। डार्क कलर में क्या है, एक तो इसकी ग्रेसफुल हो गया है डार्क कलर में, ठीक है, बट उसका जो अभी जो प्रेजेंट टाइम है स्पेशली फॉर मैंस, ठीक है, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी का मैं वो नहीं करने वाला कुछ, बट ये है कि मैंस के ऊपर में सच में बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, क्योंकि हमारे पास में जो एक्चुअल जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन है, वो यूथ की है, और हमारा यूथ मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा स्टेबल होना और स्टेप अप होना चाहिए। तो उसके बिहाफ पे हमने एक स्कल्पचर ऐड किया था। वैसे बहुत अच्छा सा आर्ट वर्क उन्होंने निकाला है, तो इट फील्स प्लास्टिक और मैट ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ नेचर में दसिया है ना, वो वाला सेक्शन उस पेंटिंग से उधर वो सारा धार्मिक जी। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਆर्ट ਹੈਗਾ? ये मैम कथकली जो हमारा साउथ इंडिया में ये वो डांस रहता है, तो उसी से रिलेट वो बोले, कहते सर हमको ये बनाने का है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उनको, ਖਾਸ ਦਾ पोर्ट्रेट ये कोई एक आर्टिस्ट है आई थिंक ध्वनि, वो मेरे को एक बच्चा है इनमेट, वो पिछले 2 महीने से बोल रहा था सर मेरे को वो बनाने का है। आई डोंट नो उसकी फेवरेट होगी, तो मैंने बोला चलो। अब ये उसने 3 डेज़ में किया मैम, अब मानेंगे ही इज़ हाईली स्किल्ड। उसने बोला सर ऑयल पेंटिंग करनी है, मैंने बोला कोई बात नहीं। उसको जैसे ही मटेरियल दिया उसने दमादम काम करके दिया। ही इज़ वेरी गुड। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? जी
अब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे जो लोग अच्छा करते हैं बिहेवियर वाइज भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम में अच्छा और बिहेवियर गलत हो, हम लोग सारी चीज़ों को एनालाइज करके उनसे बात करते हैं। और मैक्सिममली मेरा क्या रहता है, मैंने एक सेशन किया, मेरा जो अपना पर्सनल है, मैं एवरी सैटरडे उनसे बात करने का एक सेशन किया हुआ है, जिसमें 1 आवर हमने बैठना है। तो उसमें क्या होता है, मुझसे अगर प्रॉब्लम है देन मैं उनको ओपनली बोलता हूँ, जस्ट राइट अबाउट मी टू मैम। हमारे मैम पूरे अथॉरिटी हैं, अच्छे से सबको मैनेज करते हैं और सबको गाइड करते हैं। तो मैं बोलता हूँ अगर मेरे लिए कंप्लेंट भी है, जस्ट राइट। और अगर मेरे साथ में बात करके ही हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या आप लोगों से कोई प्रॉब्लम है तो मैं बात करके वर्बली उसको सही कर सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस बहुत ही अच्छा चला है। ये मेरा एक अपना पर्सनल था, कभी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में, कॉलेज में करता था। आर्ट ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ये टोटली जो है रिसाइकल्ड पेपर और ये वाइट सीमेंट और पीओपी का काम है। तो ये पेपर मैशे जो आप एलिफेंट देख पा रहे होंगे, ये पेपर मैशे का टोटली कंप्लीट काम है, राजस्थानी फोक आर्ट से रिलेट है। उसके साथ में बच्चा बोला एक हनुमान जी बनाने हैं, मैंने बोला ठीक है, तो वो हनुमान जी बना डाले उन्होंने। साथ में फिर एक बोला एलिफेंट, स्कूल का एक हम सोच रहे थे थीम के बच्चों को क्या दिखाया जाए, तो वो एक अफ्रीकन एलिफेंट है ऊपर में, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट स्कल्पचर हमारा ये है, और साथ में जो बाहर नंदी थे, ये वाला मेन जो सीटेड बुद्धा है। तो ये स्टार्टिंग का काम है मैम, और ये इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। इसमें पेपर प्लस पीओपी और वाइट सीमेंट का ही मिक्सअप है ऑन पैन। सेम चीज़ है। जी मैम, ये एक नाइजीरियन ब्यूटी इसका नाम था। तो वो बच्चा बोला कहता सर मेरे को ये बनाना है, मेरे को मॉडर्न आर्ट का ही पार्ट एक दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे को लगा ठीक है, तो उसने ऑलमोस्ट ये 2 वीक्स के अंदर में काम करके दिया। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन है। और हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਦੀਪਕ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੁਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? मेरे साथ में कुछ ना कुछ डेलीगेशन अभी कल भी विजिट करके गया है। विश के उन लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जो वो आर्टिस्ट अपॉइंट कर पाएँ या कुछ और बच्चों को सिखा पाएँ। वी हैव लॉट ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम आर्ट कॉलेज चंडीगढ़ और रोहतक यूनिवर्सिटीज़, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़। तो आर्टिस्ट को भी एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने आप को एक्सप्लोर करने का। लोगों को एक करेक्शनल जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह हमारा खाना चाहिए वहाँ पे उनको होना चाहिए। अब जैसे सेम मैम ये बुद्ध वाला जो हाईली रिलीफ है, इसमें अगर लीफ की बात करें, आप मानेंगे ये लीफ उन्होंने बनाया तो है, लेकिन ये नेचुरल लीफ है, उसको उठाया, उसको कास्ट किया और वो उसके साथ में पेस्ट किया। तो ये एक अलग ही था एक्सपीरियंस था, और ये स्टार्टिंग के काम है मैम जी। ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ? रिसेंट काम है, एक टिंटिन की स्टोरी है, एनिमेशन मूवी है, तो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। तो वो मेरे से बोला कि सर मेरे को ये टिंटिन का एक कैरेक्टर है, मेरा बहुत ही मतलब कि लविंग कैरेक्टर है इन एनिमेशन। मैं बोला ठीक है आप इसको कर लो। ऑलमोस्ट उसने 1 वीक किया और ये 1 वीक में ख़त्म। तो ये उसके साथ में उसका डॉग है स्नोई, और वो एक जो पार्ट आप देख रहे होंगे, कभी आपने भी कभी मूवी देखा होगा, तो उसका ये एक पार्ट उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ जी ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? मैम ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। उनको सच में आवरली उनको सनलाइट में बैठ के और शेड के नीचे बैठ के काफ़ी टाइम उनको देना पड़ता है। ऑलमोस्ट ऐसा भी होता है कई बार तो 2-2 दिन लग जाते हैं उसको घिस रहे हैं, वो किसी एक लैंप को बोल दें या किसी एक फर्नीचर को बोल दें। तो वो बहुत एक उनका टफ़ जॉब है, जो कि हम लोग उसको सराहेंगे, तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको थैंक यू भी बोलेंगे कि भी वो अगर ना करें तो ये काम वहाँ से चल के यहाँ तक डिस्प्ले तक ना आए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पेंटिंग्स आगे बिकदियाँ भी ने, उस तो बाद वो पैसा कितने? ये पैसा मैम अभी एक्चुअली आई एम एन आर्टिस्ट देयर, और मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर ही हुआ है, तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता है। बट हमारे अभी दीप सर अभी कुछ बोल के गए थे, बता के गए थे आपसे, उन्होंने जो बताया था वो डिटेल्स ही मैम मेरे को लगता इनफ होगा, क्योंकि मेरे साथ में जो है वो 110 रुपीज़ का पर डे का वेजेस है, और साथ में जो मेरे पास में जो मेरे अपने स्टूडियो की बात है, उनको डाइट जो है वो उनको नो चार्जेस है, तो वो ईजीली उनको फ्री है। और 1 घंटे का रेस्ट भी है मैम 8 घंटे में मेरे स्टूडियो में, तो उनको वो हम लोग नॉर्मली देते ही देते हैं, क्योंकि मेरे को पता है अगर आर्ट आपने करना है तो और आप मेंटली अगर रिलैक्स नहीं है, आप स्टेबल नहीं है, तो आप आर्ट कर ही नहीं सकते। आर्ट इज़ नॉट फॉर लेबर्स, लेबर है बट नॉट फॉर लेबर्स। कितने रखते हो ये सारा सामान तुसी? ये मैम हमारे पास एक प्रॉपर स्टूडियो है, जो कि हमारे पास एक डिस्पेंसरी का पार्ट मैं पहले ही बता चुका था, बट एक अभी हम धीरे धीरे हमारा स्टेबल होने लगा है, स्टूडियो ऑन प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टेड है, तो अभी वो बनने वाला है। जैसे भी वो इसका इनॉग्रेट होगा, आई विश कि आप लोगों को भी शायद इनवाइट किया जाए, ठीक है, तो वो रहेगा। हमारे जो डॉक्टर पल्लिका अरोड़ा मैम हैं, तो वो कर रहे हैं, सब कुछ गाइड अच्छे से करते हैं, और उनका बड़ा योगदान है इस काम को आगे बढ़ाने में। जिस तरह से सर ने भी बताया, हमारे HCS हमारे सुपरिटेंडेंट जेल विराट सर भी थे पहले, उन्होंने भी शुरू किया था, उनसे पहले ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल थे। बाकी जो अमनदीप सर हैं हमारे, प्रवीण सर हैं, खत्री सर, प्रमोद सर खत्री सर, तो ये हमारे DSP हैं साथ में, कुछ मतलब वो हेल्पफुल हैं सब।
सब लोग ऐसे हैं कि मतलब कि टीम वर्क है। हमारे हमें अंकित सर भी बोल के गए हैं कि ये पूरा एक टीम का पार्ट है। ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है, एग्जीबिशन हुआ है, ये सारी की सारी टीम अंटिल हमारा एक पर्टिकुलर, मैं तो स्वीपर को भी थैंक बोलूँगा कि वो आते हैं, हेल्प करते हैं और वो क्लियर करके सब हम लोगों को स्टेबल करके रखते हैं। ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ हैं जेल इनमेट्स? जी, सम टाइम वो बड़ा इमोशनल होता है। वो मुझसे शेयर कर रहे होते हैं कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं फिनेंशियली और उनके बिना, तो वो बड़ा ही एक मेरे लिए बड़ा इमोशनल होता है। जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा लगता हूँ कि थोड़ा सा टफ होगा, रूड होगा, बट आई एम वेरी इमोशनल ऑन दैट टाइम। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं अपने स्केचेस में भी अगर कर रहा होता हूँ तो मेरे स्केचेस में आ जाती है वो चीज़ें, तो क्योंकि हम लोगों के साथ साथ विजुअलाइजेशन होने लगती है और बनने लगता है वो विजुअल कॉन्सेप्ट, तो वो बड़ा टफ होता है वो एक चीज़ को संभालना। बट ये है कि हम लोग, मैंने आपसे पहले भी बताया, हम लोग 1 आवर का जो सेशन किया है वीकली, वो बहुत हेल्पफुल है। आई विश कि हम लोगों को बात करना चाहिए। अंटिल मैं सब लोगों को बोलता हूँ, जब भी कुछ आपके साथ में, किसी के साथ में भी प्रॉब्लम होती है, आउटसाइड में कोई भी बंदा है, अपने विचार और अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं सबके साथ तो नहीं शेयर होती, लेकिन किसी एक ऐसे के साथ शेयर करें जो सुनना चाहता है, जो सुन सकता है और उसको समझ के आपको अच्छी राय दे सके। क्योंकि राय देने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको सही करेक्ट डिसीजन पे, करेक्ट लाइन पे, करेक्ट पाथ पे दिखाने वाला कोई कोई होगा। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। उनका अभी जैसे मैं एज एन आर्टिस्ट हूँ, मेरा वहाँ पे कमर्शियल एंगल ही है। मैं वहाँ पे TGT फाइन आर्ट्स टीचर अपॉइंटेड हूँ, बट मैं वहाँ पे कमर्शियल एंगल पे आर्टिस्ट हूँ। तो हम लोगों के साथ में जैसे राखी वाला रहेगा, आई विश के मैं भी अभी मैं कर ही रहा हूँ उनके लिए प्रिपरेशन, और जो भी वो बनाना चाहेंगे पोस्टर्स, पेंटिंग्स या राखीज़ बनाना चाहेंगे अपने ब्रदर्स के लिए या मार्केट के लिए, अगर वो कमर्शियली उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਲਪਚਰਸ ਹੋਣ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੋਣ, 3D ਮਾਡਰਨ ਆਰਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਮੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।